इस समय मेरे साथ है सारा अरफीन खान। आपने इनको बड़े पर्दे पर देखा है, टीवी पर देखा है, रियलिटी शो में देखा है। वो एक माइंड कोच हैं और अभी उन्होंने अपना एक नया वेंचर और शुरू किया। वेलकम टू फिल्म इंटू सारा। Thank you, Hina. How are you? I'm good. Thank you, Looking Hina. very pretty. So are you? Thank you. तो सारा बहुत सारी चीजें जो है अगर मैं कहूँ तो आप मल्टीटास्किंग कर रही हैं। कैसे टाइम निकाल पाती हैं और साथ में 2 छोटे बच्चे भी हैं। जैसे कि अभी आपने देखा एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है हमने। उस टाइम टेबल के हिसाब से अगर हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो दिन में जो 24 घंटे हैं आपको ज्यादा लगेंगे। अगर आपका टाइम प्रायोरिटाइज नहीं है एंड इट्स ऑल ओवर द प्लेस, देन 24 आवर्स क्या 36 आवर्स भी आपको ऐसे लगेंगे पता नहीं where it is. True. So we have a set time for everybody in the family. 8:30 बच्चे रूम के अंदर चले जाते हैं and 9:30 they sleep. So from that time that's why I go for events, parties, all the social things that I have to do, because then I'm free. Then I don't have a guilt-free attitude, in my expression. लेकिन दिन में also इनका classes है, Okay. So when they have the classes, then I know that I can give that time. So as much as I can, I do it. Yes, only Big Boss का journey वो expect नहीं किया था कि I would survive for 3 months, So that was, but it was interesting. New venture I've started, yes, because I thought life is too short now. I think मुझे जो करना है वो क्या होता है ना, Big Boss आपको fast forward जिंदगी का दिखाता है। वो जो हम 3 महीना जिए हैं वो जिंदगी का पूरा fast forward है in those 3 months. So you know that how it is with life. So I thought, why not? Let me expand. Let me try. Let me experiment, and then see how it goes. Anyway, we have a biggest company in Asia for mind coaching, and I'm not exactly a mind coach. I only do seminars for women. I help them to love themselves even more. So that's where I come in. And everything na Hina self love से start होता है. आपका relationship, आपका business, आपका family. क्योंकि हम लोग as women, we don't even realize कि हमारे पास कितना power है, to be very honest. And men, children, household, business, it all depends on our vibe. Yes. So if you are a homemaker, if you are a wife, you will see that अगर आपका state of mind disturbed है, आपके पूरे surrounding disturbed हो जाएगा. आपका finances disturb हो जाएगा, आपके husband का business disturb हो जाएगा, everything. So a woman has a special responsibility than just to be a mother. Like even motherhood is like, I am telling you, it's the highest. But apart from that, we have a higher responsibility of keeping our state of mind intact. Because apart from that, our family, our business, everything around us will fall apart. So that's the kind of seminar I do. Yeah. सारा, ऐसा नहीं होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसे मोमेंट्स नहीं आए होंगे जब आपको लगा होगा कि इससे ज्यादा वर्स नहीं हो सकता? हाँ, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना कितना मुश्किल होता है? एक्चुअली बहुत सारे सर्कमस्टांसेस मेरे लाइफ में हुए कि मैंने सोचा इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, लाइक व्हाट इज़ इट दैट आई कैन फेस बियॉन्ड दिस. बट लाइफ ऑलवेज टीचेस यू एंड इट प्रिपेयर्स यू फॉर इवन वर्स. बट इफ़ यू कैन हैंडल इट, you are a success. So for me, I think मेरे बच्चे जो है वो मुझे ज़्यादा strength देते हैं, because now I'm not thinking of how I will be able to handle my business, how I will be able to survive. I think if I am not protecting my mental state, how will I look after them? And how will they look up onto me? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, they are very very intelligent. आप अगर उनको verbally कुछ सिखाओ तो वो सीखेंगे नहीं इतना जितना वो आपको देख के सीखते हैं. इसीलिए कहते हैं ना कि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना होता है. सो वॉट एवर यू डू दे विल इम्प्लीमेंट. एंड स्ट्रेंथ हम सब में है. हमको ऐसा हमेशा लगता है कि हमारे आई डोंट थिंक आई कैन हैंडल इट, बट ऑनेस्टली वी आर हियर, वी मेड इट इन दिस वर्ल्ड. वी फॉट थ्रू राइट फ्रॉम आई थिंक व्हेन वी वर नॉट इवन अ सीड, we fought through. We were the ones who made it in life. Yes. And why not just survive and make it the best? So how much Arfeen helps you? Arfeen's biggest help and support to me is his understanding. Never stops me, never discourages me, gives me the pros and cons, but always says go for it. At the most what will happen? So वो जो होता है ना at the most,
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, इससे कम क्या हो सकता है. What is the worst, what is the best, so try and see what is the best. So that's his major like support for me. आपको हमने स्क्रीन पे भी देखा सिंघम रिटर्न में, जी. सूर्यवंशी में, जब आप बिग बॉस के घर के अंदर थी तभी सिंघम जी. रिटर्न जो है जी. वो रिलीज भी हुई थी. तो और कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं आप अभी करने वाली हैं? सी प्रोजेक्ट्स तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो नहीं. सो आई एम स्टिल इन दैट प्रोसेस ऑफ वेटिंग एंड सिलेक्टिंग द राइट प्रोजेक्ट. आई डोंट वांट टू डू जो भी कुछ मेरे पास आए जस्ट बिकॉज आई हैव डन सिंगम अगेन एंड बिकॉज आई हैव डन बिग बॉस में सब कुछ करूँ, सारे रियलिटी शोज करूँ. वैसे तो बहुत सारे रियलिटी शोज भी आए, बट आई एम पिकिंग माई वर्क very carefully because I'm not only an actor, I'm an entrepreneur and a mother. Yeah. So, and I want to excel in everything. So, you know what I'm saying? So I just want to take it easy and see what works best for me. तो और भी रियलिटी शोज आप कंसीडर करेंगे एक करने के बाद, क्योंकि वही काफी मुझे लगता है कि काफी डिफिकल्ट नहीं हो गया था? वो डिफिकल्ट था, इट वॉज चैलेंजिंग. आई थिंक हम कहीं ना कहीं एक्चुअली इट स्टार्टेड लाइक अ फन जर्नी. वी एंजॉयड अ लॉट. फिर क्या हुआ ना कहीं हम वो गेम में फंस गए. हम भूल गए कि ये गेम है. हम रिश्ते में बह गए. और ऑल्सो समटाइम्स होता है ना कि यू मिस योर किड्स एंड यू मिस योर फैमिली एंड व्हाट इज दिस, वेयर आर यू, जहाँ पे रिश्ते का नाम दे रहे और नॉमिनेट भी कर रहे हैं. मतलब ये क्या है, दिस इज फेक. क्योंकि मैंने जो भी रिश्ते निभाए थे लास्ट तक रखे, मैंने उनको नॉमिनेट किया ही नहीं. हाँ. सो आई वाज लाइक this just shows what you are at the end of the day, you know. But yeah, I mean, reality show depends. Like I got one, I don't know, there was another reality show which was interesting to hear, but when I saw the clip I did not like it. जंगल की रानी एक है. Yes, जंगल की रानी. वो भी मिला था. वो actually last जो था वही latest मिला था, and I said, wow, it sounded very interesting. He go and survive in the jungle and stuff like that. So it's mentally and physically again a strength portraying show. But when I saw, I don't think that is for me. Okay. Yeah. तो आपने जैसा कि कहा कि मैं कोई भी काम आए तो नहीं ले सकती हूँ. जी. तो what is the right work for you? मतलब आपको क्या लगता है कौन सा, किस तरीके का काम आप ढूंढ रही हैं? Acting oriented. And I'm not saying कि I don't want to do glamour role. Of course I want to do glamour role. But I don't want to be just a product of a prop. You know, I don't want to be treated like just there for the heck of it and subjected to just body and scenes that I do not want to go ahead with. Okay. So I want to do something which is impactful, एक्टिंग ओरिएंटेड, वेरी इंटरेस्टिंग. और आजकल अगर आप देखें तो OTT में इतने ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग शोज आ रहे हैं. इट्स नॉट ओनली जस्ट रोमांस एंड सेक्स एंड स्लीज. देयर इज अ लॉट मोर कमिंग. So I don't know what is it with my face. I'm getting more of sleaze stuff rather. So I'm like, listen, I cannot do this. I don't want to do this. So that's why I'm taking my own sweet time. I said, But you are well connected with Bollywood as well. Yes. रोहित के साथ आपका अच्छा है. जी. ऋतिक के साथ हमने देखा. जी. तो आपको लगता है कि उन कनेक्शंस को भी काम पाने के लिए यूज किया जाता है, या आप फ्रेंड्स अलग है, काम के लिए प्रोफेशनल रिलेशनशिप अलग है? I think क्या होता है जब आप अपने रिश्तों को I don't know this, check this out in any relationship. Once you start asking, the whole vibe changes. Yeah. You know, I don't like to ask. They already know I'm an actor. So if something comes and if they think of me well and good, if it doesn't, then I don't want to ask क्योंकि वो पूरा ही statistics change हो जाता है. बट इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है. मतलब जब तक आप काम मांगोगे नहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना टैलेंट है या इतना कंपटीशन है. I believe networking is important. And हमारे नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं जो me and Afina are well connected with a lot of Bollywood, lot of Yes. production, lot of companies. But you know what, अगर आपके लिए है तो वो आएगा. They already know what we do. So sometimes knowing too many people also doesn't work. You know, it's like I have got my friends that I've introduced them to the best casting directors.
You know, and all those casting directors are my very close friends, but they will not give me work. They'll not even like send me for an audition, but I have to request them for somebody else, and it works better. Sometimes it just works like that. You know what I'm saying? जैसे हम फैमिली में भी एक दूसरे को कैसे ग्रांटेड पे ले लेते हैं, हाँ. फ्रेंड्स कैसे एक दूसरे को ग्रांटेड पे ले लेते हैं, इट्स लाइक दैट. आपके घर पे कुछ होगा, आप बाहर ढूंढोगे. माय हस्बैंड इज वर्ल्ड रेनाउंड माइंड कोच. Yeah. आई विल नॉट लिसन टू हिम, मे बी आई लिसन टू समबडी एल्स. यू डू दैट, इट जस्ट हैपेंस. तो ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कभी किसी को रिकमेंड किया और उसको बहुत अच्छा काम मिला हो रिसेंट में अभी? You know, to be very honest, Hina, मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ TV or movies or stuff like that. So they have got work. They thanked me also, but I don't know exactly what. और Okay. जिनको मिला है उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ. I don't want to show that you know I have done this for them or something like that. So yeah. ओके. तो मुझे लगता है मैं भी थोड़ा सा की तरह आराम से बैठ हाँ, जाती हूँ. please. ये ज्यादा कंफर्टेबल लगा है. सारा बिग बॉस में आपकी जो जर्नी हमने देखी जी. और हमने देखा कि कई जगह पे आपका ब्रेक डाउन भी हुआ था. जी. तो बाहर आने के बाद आपने वो सारे एपिसोड्स देखे और बाद में आपको लगा कि मैं कहीं गलत थी, मुझे Episodes नहीं देखा कुछ भी. नहीं. मैं अभी वो जर्नी से गुजर चुकी हूँ. एंड वो उतना ही इतना लाइक इट वाज very heartbreaking being in that situation anyway, you know, of mistrusting and trusting people. I have encouraged meeting everyone, you know, कि गोवा जाना या यहाँ पे Yes. मिलना. तो in fact I'm the one of the people in the Big Boss contestant that has done these meetups. किसी ने नहीं किया है. इफ्तार पार्टी, पजामा पार्टी, Yeah. गोवा. Goa celebration. It's Yes. just a reunion kind of thing. कि देखो गेम को गेम की तरह हो गया. We got sucked onto that. We reacted to that. We were completely disconnected from the world. No social media. No family. No you know, no time or दिन का पता. तो वो एक state of mind में हम चले गए थे. लेकिन जब बाहर आए तो हमको ये याद दिलाना पड़ता है अपने आप को कि ये एक गेम शो था. इट वाज अ रियलिटी शो. और कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमने एग्जैजरेट भी किया. हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जैजरेट किया या हमारा एक स्ट्रैटेजी था. आई ब्रोक डाउन बिकॉज I think I broke down only first time. The other times I was just like, okay, bring it on. I just wanted to bring that wall. Ki don't take me for granted because they eliminated Afeen. Afeen was a good contestant. Yeah. You know, he didn't have to be eliminated. कभी कभी होता है कि आपको लेसन टीच करने के लिए somebody else has to, and as going in a partner is not as beneficial as it looks like because you're targeted first. You know, so I think I was targeted through Afeen's elimination and I broke down then very badly. I broke down just before as well जब भी मुझे ऐसे लगा कि शो biased है और मुझे ऐसे लगा कि विवियन एकदम टर्न कर दिया. You know, because Vivian, me and Afeen were very close. All of a sudden, he just switched. So that broke me down. कि आप रिश्ते बनाते हो, आप कैसे switch करते हो? But मैं समझ गई. Vivian was intelligent, and so was everybody else. And I needed to understand that it's a show. At the end of the day, you cannot. You have to treat it like a show. You have to see. दिमाग से खेलना है, दिल से नहीं. नहीं. और मैं बहुत दिल से खेलती हूँ, बहुत ज्यादा दिल. और अगर आपने मेरे से रिश्ता बनाया है ना, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, I will stand by you. ये मैंने आपके बारे में सुना है, बाहर भी. I'm telling you, I will not care about the show. I will not care about the business. I will not care about anything. If I have this relationship with you, I will stick on by you, even if you're wrong. Maybe I will tell you you're wrong, but I will not leave your side. Yeah. So sweet. So it's like that. तो आपको लगता है जो चीजें फेक घर के अंदर लग रही थी वही चीजें फेक बाहर भी थी, या जो चीज रियल लग रही थी वो बाहर आके आपको लगा कि ये तो सब फेक ही चल रहा था घर के अंदर? घर के Which thing अंदर hurts you a lot after coming out? जो आपने बाहर आके देखी और हर्ट. मैंने देखा नहीं. That's what I'm saying. I did not बाहर see. के रिश्ते या बाहर के रिश्ते. आने के बाद लोगों का बदलना, तो कोई चीज हर्ट हुई बहुत ज्यादा? Contestants में? हाँ. Yeah, of course. रिलेशनशिप जो मुझे लगा कि ज़िंदगी भर तक हम साथ निभाएंगे, वो रिलेशनशिप बाहर आने के बाद बिल्कुल ही ट्विस्ट हो गया. कुछ टाइम तक बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम ट्विस्ट हो गया. लाइक व्हाट हैपेंड देयर. और जो मैंने सोचा रिश्ते जो नहीं बाहर निभा पाएंगे
बिकॉज अंदर आपने तो वो स्ट्रेंथ दिखाया नहीं, आपने सपोर्ट नहीं किया, बाहर आके आप क्या सपोर्ट करेंगे? लेकिन वो रिश्ते उल्टा बहुत स्ट्रांग बने. लाइक आई वॉज वेरी अपसेट विद विवियन टू स्विच, बट नाउ ही इज क्लोज अगेन टू अस. So we have a lot of reunions with him. So Yeah. it's amazing, that it's not only आप गेम शो के हिसाब से रिश्ते प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो. अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, रजत और मेरा रिश्ता सबसे ज्यादा स्ट्रांग था अंदर. Yes. सबसे स्ट्रांग. In fact, when I got out of Big Boss house, I think I went to his meetup first instead of Yeah. meeting my kids. So something changed when he came out. He met us, but then one fine day he just stopped meeting. In fact, Afeen and him were very close, and I don't know what happened. And मेरा जो उसका bond था वो एक brotherly bond था. It was like a friendship bond. It was like कैसे बोलते हैं, हमने उसको प्रोटेक्ट करते हुए भी देखा है आपको. Yes. चीजों से. like crazy. Like I would not, अगर कोई उसके बारे में एक चीज बोलता था उसकी पीठ पीछे, I would like launch at that person. So backbiting, bitching, ये सब हमारे बीच में था ही नहीं. तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो मुझे लगा कि बाहर आके हम निभाएंगे, पता नहीं क्या हुआ that he doesn't appreciate it because I don't know what is it. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं पे उनका एक स्टेटमेंट भी सुना था कि मैं किसी और की वाइफ को क्यों मैसेज करूंगा, मैं तो खाली एक बार गाड़ी में गया था एयरपोर्ट तक, और मतलब मेरा नाम लेकर कोई पब्लिसिटी ले रहा है, ये पसंद नहीं है मुझे. अब एक बात बताओ हिना, वो मुझे किसी बहुत सारे लोगों ने वो लिंक भेजा और राइट. नाउ द थिंग इज दैट मेरे इफ्तार पार्टी में वो नहीं आए, मेरे एनिवर्सरी में नहीं आए, सिंपली बिकॉज ही सेड जहाँ पे चाहत होगी मैं नहीं आऊंगा. ठीक है, दिस वाज टोल्ड. ओके, you must be having your relationships that you have to worry about. That is important. If my husband doesn't like anybody, I will resist. ठीक है, it's very normal. Yeah, no. शायद उनके किसी रिश्ते को हमारा रिश्ता पसंद नहीं आया होगा. इफ्तार पार्टी में मुझे पूछा गया था कि आप रजत से मिलते नहीं है, और मुझे इतना ट्रोलिंग मिला था उससे पहले, बिकॉज मुझे, क्योंकि एक पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि चाहत और रजत भाई बहन के तरह रिश्ता था. वो कैट्स एंड डॉग की तरह फाइट करते थे. वो जो दिखाया गया था बाहर वो कंप्लीटली डिफरेंट है जो अंदर हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे. So he is the one who told me to say it, that please can you clear it अगर कभी ऐसा हो. Clear क्या, as his fans and Rahat fans started messaging me, oh Rajat is not talking to you because आपने उसकी पसंदीदा औरत को उसकी बहन बना दिया. So I was very irritated with that कि ये क्या है. तो मैंने इफ्तार पार्टी में डिक्लेयर कर दिया, हम मिलते हैं लेकिन जरूरी नहीं है मुझे सोशल मीडिया में डालना पड़ेगा. हमारा रिश्ता प्राइवेट है. We went for drive, he came at home also, so what? Now he didn't want maybe his family to know or his fans to know that we meet. सीधी सी बात है, कुछ तो हुआ होगा that he didn't want it, तो he started justifying. तो सीधा आप अगर मेरे से नाराज है तो I would expect you to call up and say please don't say this, understand कि I cannot acknowledge this, so don't say this. मैं बोलूँगी ओके ठीक है, हटाओ उस चीज को. लेकिन आप एक पॉडकास्ट में जाके बोला कि मैं तो गाड़ी में कभी बैठा ही नहीं, जो झूठ है. मैं खाली एयरपोर्ट तक गए. हम एयरपोर्ट गए थे, ऑफ कोर्स एयरपोर्ट गए थे, लेकिन हम आपको मिले ही इसलिए ना कि हम आपसे मिल पाए और हम एक थोड़ा वक्त बिता पाए और फिर साथ में एयरपोर्ट जाए. सो व्हाई डू यू हैव टू जस्टिफाई कि हम सिर्फ एयरपोर्ट के लिए मिले? हम क्या आपके एयरपोर्ट सर्विस है? मिले ही मिलने के लिए ना. Yes. So why you telling people that we just who are you justifying to? मतलब आपको ये था कि चलो उतना भी वक्त मिला तो साथ बिताएंगे, हम ड्रॉप कर तो ये क्लोजनेस ही हुआ ना. हाँ, कि चाहे 12 बजे हो या 2 बजे हो, आपको जो टाइम मिला हमारे साथ हमने स्पेंड किया. सो व्हाट इज इट कि एयरपोर्ट तक मिले तो आपको ये, आप किसको जस्टिफाई कर रहे हो? आपको क्यों लगता है ये गलत है? एंड व्हाई यू बिहेविंग लाइक दिस? सो ही सेड, और you're using name for publicity. Now you tell me, Rohit Shetty, Hrithik Roshan, Tiger Shroff, वानी कपूर, भूमि, इन सबको मैं पब्लिसिटी के लिए यूज नहीं करूं, मैं रजत दलाल को पब्लिसिटी के लिए यूज करूं. Does that even make sense? It's like I have a lot of people that I can be trending with. I don't need to do that. Me and Afeen do not need to do that. We do not want trending.
हमको खाली ऑडियंस का प्यार चाहिए और अपने फैंस का प्यार चाहिए, द फैमिली का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. सो वी आर नॉट इनटू ऑल दिस. अगर मुझे और आफीन को ट्रेंड ही होना है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ट्रेंड होने के लिए. ट्रू. हमको नेम ड्रॉप्स करने की जरूरत नहीं है, यू नो. So that's what I was upset about. I said, who's he justifying? And so what? Like, and so what if you met? Forget about meeting Afeen and me together. So what if you even? So the fact that he said कि किसी की wife को message करने के, that was so stupid because we did talk. He's been talking to him also. He's been talking to me also. किसी की वाइफ आपकी सिस्टर भी हो सकती है, दोस्त हो सकती है. Exactly. I was like, why is he using this kind of language? He would never, because आप और हम 3 महीना साथ रहे अंदर. या आफीन के जाने के बाद भी हम बहुत क्लोज रहे. इनफैक्ट आफीन के जाने के बाद हम और क्लोज रहे. क्लोज रहे. Yes. तो आप इस रिश्ते को इतना ट्विस्टेड क्यों बना रहे हो, या आपके जो लोग हैं ट्विस्टेड क्यों बना रहे? डोंट यू हैव योर ओन सेंस? तो आपने बात करने की कोशिश की या नहीं. आई वॉज वेरी अपसेट विद दैट पॉडकास्ट दैट ही सेड कि पता नहीं लोग क्यों कहते हैं. हम लोग नहीं है, हम फैमिली है, यू नो. So that statement that he made कि मैं तो कार में बैठा ही नहीं था, the way he said it, it was very offensive. Yeah, the tone was very offensive. Very offensive. And for what? Just because I admitted that we're meeting late nights or whenever? I will not lie. Why should I lie? Because your people are insecure. Why should I lie? रजत का वही है शायद बात करने का मतलब. No. I know him so well. It's not that. He got upset because I acknowledged कि हम मिले. तो शायद वो बहुत ही प्राइवेट रखना चाह रहा था, जो शायद मैं नहीं समझ पाई. हो सकता है. और जो चाहत वाली आपने बात कही, वो आपने कभी क्लियर किया कि जब मुझे रजत ने खुद ही ये बोला था? बहुत बोला फैंस को. यस, बहुत बोला फैंस को. बोली है कि आप मेरे को चाहत वैसे शिफ्ट मत करो. नो, ही जस्ट सेड, डूड, आई एम टेलिंग यू, व्हेन ही केम आउट इवन ही वाज शॉक्ड. ये क्या है? हाँ. ये रात क्या हो गया? सो यू नो ऑल दोस रील्स कमिंग अप and then it was like I said, कौन सा बिग बॉस देख रहे थे भाई? कौन सा बिग बॉस बाहर चल रहा था? So I'm like, I'm confused because they so did not get along. And जो भी थोड़ा नोक झोंक उनका था बीच में, वो रजत जानबूझ के चाँद को छेड़ा था, चाँद जानबूझ के इरिटेट हो. तो ये तो like it's बिग बॉस चलता था, but it was not like constant. He would in fact spend more time with me and Isha and all these people. हमारे साथ. तो चाहत का तो लिंक ही नहीं था. So I don't understand how this even happened, you know. So क्योंकि not only you, Eden, Yamin, if I'm not wrong, कशिश, सबने रजत को अनफॉलो किया. बीच में खबर आई थी. मैंने कभी नहीं अनफॉलो किया. Okay, you are still following him. I don't. He's unfollowed me. He's blocked me now. So that's strange, yeah. So this is what happened the minute he came out. He blocked us all. Then I called him. I said, don't you dare bloody block me. Do you understand? तो बोला नहीं. मैंने बोला मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ. मैं तुम्हारी बहन जैसा दोस्त का रिश्ता है. तो मुझे ब्लॉक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है तुम्हारा. तो मैं और आफीन वो वीडियो कॉल में बोल के उसको चिढ़ा रहे थे. मैंने बोला खबरदार, ओके, कि तूने मुझे ब्लॉक किया. तो उसने फिर मतलब अनब्लॉक किया. ब्लॉक के बाद भी आपने इस चीज को बहुत लाइटली लिया. I said, होते कौन हो तुम मुझे ब्लॉक करने? Unblock me right now. So that kind of हक दिखाया कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, मत करो. एक रिश्ता बनाया अंदर, यू नो, और स्ट्रॉन्ग रिश्ता. दिखावे का रिश्ता कैसे हो सकता है ये? फिर या तो आप जो अंदर कर रहे थे वो दिखावा था. फिर मुझे नहीं पता कि हमारे सोने के बाद आपका जो नोक झोंक चाहत के साथ चल रहा था, जो मुझे लोग 10 बार ट्रोल कर रहे हैं, एंड ऑल हिज फैंस आर टेलिंग मी यू डोंट नो यू हैड स्लेप्ट. उसके बाद इनका नोक झोंक चालू होता है. I said, really? Impossible. And then they started sending me all reels and all. So I don't know what is reality and what not. So, and he did not even clear the fact. Kuch bhi nahi. He came out, he was a different person, he blocked everybody. And then I said, don't you dare block me. Unblock कर दिया. फिर हमारा बात भी हुआ. When he made this statement, मैं किसी की बीवी के साथ कैसे बात करूँ? That's a lie. Because we did speak. He did call. I called, he called. So, उसमें गलत क्या है? तो झूठ बोलने का कोई बनता ही नहीं है. अगर आप झूठ बोल रहे हो और आप झूठ स्टेटमेंट बोल रहे हो तो भैया आपके नियत में खोट है, हमारे तो नहीं. Simple as that. Blocked you? Yeah, now he's blocked. He doesn't even speak to Afeen now for some reason, so which is quite hurtful and painful. Okay. And if at all, अगर उनके रिश्तों की वजह से उसने ये रिश्ता खत्म किया है,
तो ऐसे रिश्ते ज़्यादा चलते भी नहीं है अगर आप पे ट्रस्ट ही ना हो। अगर मेरा रिश्ता इतना वीक है कि मैं प्योर रिश्ते भी नहीं निभा पाऊँ तो वो रिश्ता कब तक चलेगा? आप कब तक अपने आप को सबसे एक्सक्लूड करोगे? एंड प्योर रिश्ते को, यू नो, बिकॉज इफ माई रिश्ता विथ यू इज स्ट्रॉन्ग एंड प्योर, आई विल फाइट फॉर दैट रिश्ता। इवन इफ माई हस्बैंड डजंट लाइक इट, आई विल फाइट फॉर दैट रिलेशनशिप, क्योंकि मैं गलत हुई नहीं। सीधी सी बात है। So it was Arfin reaction. Of course he was upset. He's like, what is this? And what was his suggestion to you about all this? You're very emotional. I know you must have felt bad. I know कि तुम उसे बहुत अपना close मानती हो, closest मानती हो. Just forget it. If he's true, he will come back on his own. If he doesn't, it was not worth it. And it took me a long time to believe it's not worth it because I still feel emotional about it. मैं अभी भी एलिस से बात करती हूँ, मैं अभी भी नायरा से बात करती हूँ, मैं अभी भी आफीन से बात करती हूँ कि मुझे अभी भी बहुत दुख हुआ है. How can he just say something like that and disappear? Like for what? So it is painful because मैं दिल से रिश्ते रखती हूँ. मैं कोई शो के लिए रिश्ते नहीं रखा था, you know, या कोई समीकरण बनाने के लिए नहीं किया था. इवन मुझे याद है कि करण के साथ आपका जो शो में हुआ था, बाहर आने के बाद आपने बोला था कि कोई बात नहीं, मुझे कोई माफी वाफी नहीं चाहिए, चीजें हो गई, ठीक है, क्यों इतना मैं ग्रजेस रखूं. At the end of the day, Hina, life is too short for all this shit. रिश्ते बनाओ, निभाओ, अच्छे से निभाओ और प्योरिटी से निभाओ और दिल से निभाओ. अगर आपको रिश्ते नहीं रखने हैं तो सीधा बोल दो, लेकिन ब्लेम मत करो कि पता नहीं क्यों ट्रेंड होने के लिए मेरा नाम लिया जा रहा है, क्यों लोग ऐसे बोलते हैं, मैं किसी के बीवी के साथ क्यों रिश्ता. व्हाट इज ऑल दिस शिट? आर यू पैथेटिक? आर यू स्टूपिड और व्हाट? नहीं रखना है, सीधा बोलो नहीं रखना है. डोंट से ऑल दीस थिंग्स. फेमस हो रहे हैं, अभी रियलिटी शो भी होस्ट किया, तो उन्हें लग रहा होगा कि उनको अपना एक अलग बनाना है नाम या अलग गैंग. सो बी इट, ठीक है. आई विल ऑलवेज कीप हिम इन माई प्रेयर्स. ही विल ऑलवेज बी क्लोज इन माई हार्ट. It just takes a phone call or a message to sort everything out. I will never ever wish bad for him because मैं वो भूल ही नहीं सकती हूँ जो हमारा रिश्ता था बिग बॉस में. मैं नहीं भूल सकती हूँ. मुझे पता है कि उसने मुझे कितना सपोर्ट किया और मुझे पता है कि मैंने कैसे सपोर्ट किया उसे. तो मैं तो किसी की जान ले सकती थी, मतलब उसके लिए अंदर. You know, it was like that strong. And I will always have this soft corner for him, no matter what. रिश्ते की बात हो रही है. ईशा, अविनाश, चुम और करण को देखकर कैसा लगता है? क्योंकि लोग हमेशा ये सवाल उठाते थे कि पता नहीं रियल होगा नहीं होगा, लेकिन बाहर आने के बाद जब इनको साथ में देखते हैं तो फैन बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं. Yes, it's nice to see all of them together. It's beautiful to see them together, and it's beautiful to see कि रिश्ते बिग बॉस के बाहर कितना खूबसूरती से निभाया जा रहा है. So I wish them, you know, well and good luck, and I hope that they always stay blessed and together. करण ने फिल्म में भी साइन किया आपकी, उसके बाद कुछ बात हुई करण से? नहीं, अभी बीच में मिले थे हम लोग, लेकिन नो, आई डोंट नो व्हिच फिल्म ही साइंड और व्हाटएवर, बिकॉज वी मेट एट St. Andrews, so there was a meet up, a play, a show, something. So, but no, we didn't talk much because मिले थोड़ा बहुत बात किया बिग बॉस के में. इतने लोग थे, so yeah. You know. But he was not there in your iftar party, if I'm not wrong. Yeah, he didn't come for the iftar party. तो लोगों ने बोला कि क्या हो गया, क्या अभी भी दोनों के बीच में नाराजगी है क्या, करण और आशीष सारा के बीच में? वो नाराजगी तो बोल नहीं सकते हैं, बिकॉज हम मिलते ऐसे हैं जैसे पता नहीं कौन से बिछड़े हुए दोस्त मिल रहे. सो वन थिंग अबाउट करणवीर आई लाइक द मोस्ट इज नो मैटर व्हाट, व्हेन यू मीट हिम he will like hug you and he will meet you very well. So I really appreciate that. Warmth जो है. Yes. That warmthness is there, and you know, you like that. I think I'm like that. No matter what, when you meet, I'll forget all the grudges and I would love to, you know, hug the people. हम लोग at the end of the day अगर देखा जाए तो बहुत खतरनाक जर्नी में थे साथ में. So it was, you know, it was the most important 3 months of our lives. शो में बहुत चीजें होती हैं जो लोग भुला देते हैं, कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं.
एक चीज हुई थी शो खत्म होने के बाद जिसको चुम ने बिल्कुल लाइटली नहीं लिया था, जो उनके बारे में शब्द इस्तेमाल किए गए थे, और वो उसको लेकर नेशनल वुमेन कमेटी में भी गई थी। जी। तो आपको लगता है कि कुछ चीजों को लेके लाइन ड्रॉ उसी समय कर देनी चाहिए? सी हद तो हमें हमेशा नहीं पार करनी चाहिए, हमेशा यू हैव टू कीप दैट रिस्पेक्ट। समटाइम्स क्या होता है ना, और हम इनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्यों मालूम है? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग रियलिटी शोज एंड दे आर बीइंग ट्रेंडी फॉर बीइंग स्टूपिड एंड वी आर इनकरेजिंग इट एज ऑडियंस। तो हम इनकरेज भी करते हैं, हम उसको फेमस भी करते हैं, हम कंट्रोवर्सी भी हमको पसंद है, उसके बाद हम उस कंट्रोवर्सी में बह जाते हैं और फिर लाइन क्रॉस करते हैं। So a lot of YouTubers, a lot of content creators, a lot of podcasters have crossed their line to trend. So I think somewhere down the line they should understand कि आप करो, लेकिन not at the expense of somebody else. आप मजाक अपना भी उड़ा सकते हो ना, आप अपनों का उड़ा सकते हो। You know, if you want a trend, talk about something like that, but talking about the country, talking about women's character, talking about all this is not needed. Religion, don't mess around with these kind of sensitive topics. So there has to be a line drawn, of course. रिलीजन की बात से मुझे याद आया कि जब आप बिग बॉस के घर के अंदर थी तो करण ने भी एक स्टेटमेंट दिया जी। था आरफीन के सामने, दैट जी। ही हैज फोर्स्ड यू Yeah. कन्वर्जन के लिए। Yes. तो उसके बाद कभी करण से आपके इस बारे में बात हुई? आपने कहा कि उसको ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी? हाँ, नहीं बोलनी चाहिए थी, स्पेशली उसके एक दिन पहले तो हमारी पूरी डिटेल में बात हुई थी। अच्छा, जो हमें तो नहीं दिखाया एज ऑडियंस। Oh, really? हाँ, एज Because he was working out जिम सेक्शन में, मैं रजत और करणवीर तीनों वर्कआउट कर रहे थे, और उस दौरान उसने पूछा था, सो टेल मी हाउ डिड यू रिवर्ट, हाउ डिड यू एक्सेप्ट इस्लाम? सो आई जस्ट टोल्ड इट वाज माय कॉलिंग, जैसे विविन का कॉलिंग था। समटाइम्स एक जरिया होता है, आपको वो जरिया मिल जाता है, और तभी तो हमने डिसाइड भी नहीं किया था मी एंड आफीन दैट वी गोना गेट मैरिड। सो इट्स जस्ट दैट I found myself studying and getting into this religion, ओके। and then I moved on. I started believing. I started going to a lot of meetups regarding Islam, and I just felt that was my calling. And it was not that I converted before I married Afin. हमको पता भी नहीं था. And then it just happened, and I told him the whole journey. I told him. उसके बाद next day he tells Afin this. So that was like, but I just told you everything. तो और आफीन ने मुझे अंदर बोला नहीं, मैंने क्लिप देखा बाहर, and when I came out my mom told me that she had to go through a lot of trolling for this. Then even Afin's brother, mother, everybody had to go through a lot of trolling in London and Dubai for this. They were all fed up. ये क्या है, हमको hatred क्यों मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, वो मिल रहा है. How can somebody force anybody to do anything? And especially in a day and age like this, तो I cannot be forced into anything. In fact, मैं rebel हूँ. अगर आप मुझे force करो तो मैं दूसरे तरफ चली जाती हूँ. So it's like that. So it was strange that he made that statement, but of course, it's Big Boss. Everyone loves drama, controversies, and outburst. इस साल तो कह रहे हैं कि 5 महीने तक चलेगा। Hats off to everybody who's going to be a part of it. But if you take it as a game, if you take it as a reality show, and if you take it as a fun thing, and you remember कि it's not life, it's just a reality show, it'll be fun. It's a fun journey. It's also fun because it pushes you to a limit. एक चीज जो हमने देखी खत्म होने के बाद कि विविन बहुत लाइमलाइट से दूर ही रहे, वो बहुत ज्यादा आए ही नहीं सामने। Really? हाँ। I don't know. Maybe personal choice. If you see, even Afin didn't. हाँ। So it's not always about the limelight for everybody. It's not always about trending. When you know you are something, Yeah. the world will love you anyway. So with Vivian, with Afin, they are real men. They don't need to be trended just to be in front of the media. Amitabh Bachchan ji is not Yeah. trending all the time. He doesn't have to do anything. People know who he is.
ये तो बिग बॉस की बात हुई। अगर मैं बात करूँ बॉलीवुड की, तो हाउ ऋतिक के साथ आपका जो फैमिली है उनके साथ बहुत सालों से एसोसिएशन है। बहुत सालों से आई थिंक 10 years नाउ। हमने कुछ पिक्चर्स देखी आपके बच्चों के साथ भी, Yeah. और हमें पता है कि ऋतिक को बच्चे बहुत पसंद है। Yes. तो He's a damn good father. Damn good father. Just to see the way he was communicating with Aiza and Zidane, Huh. it was so good to see him like that, and it's amazing. तो वो जो bond था, you know, of him talking to Aiza, Zidane about their life and the responses that they were giving him, and they call him Hrithik Bro. really? So it's amazing. So how this is, मतलब कैसे ये स्टार्ट हुआ था या क्या? ये तो बहुत लंबी कहानी है। I don't know, Afeen and Hrithik just met and they clicked. Okay. And Hrithik came as वो बोलते ना, जब भी कोई मिलता है तो एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी होती है और एक एक्सचेंज ऑफ गिव एंड टेक भी होता Yeah. है। सो आई थिंक Hrithik was a mentor for Afeen's health and fitness, and Wow. Afeen was the mentor for Hrithik for his mind and So life. sweet. So this was how the connection became so strong with the family as well. वाह। चलिए सारा, हमने बहुत सारी सीरियस टॉक कर ली। मुझे ये बताइए कि पजामा पार्टीज और गोवा में कितनी मस्ती की, और कुछ उसके सीक्रेट्स अगर आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सके। माय गॉड, पजामा पार्टी मतलब पजामा पार्टी इसलिए हमने वो नाम लिया बिकॉज सब घर पे थे, मुझे एक क्विक इवेंट के लिए जाना था तो मैं क्विकली गई और मैं बैंड्रा से सबके लिए सेम पजामाज लेके आई। The top, the night out, we just called it a pajama party, but I bought bags. I said, let's all wear the same things, and all these girls are like, mama आ गई तो वो मस्ती के टर्म पे मुझे बोला, तो we all wore the same polka dot thing, and you know, एंड पूरी रात हमने पेंटिंग की यहाँ पे। सो ये सारे सोफाज हटाए गए, यहाँ पे पूरा रग किया, यहाँ पे पूरा हमने पेंटिंग्स रखा, एंड वी जस्ट स्टार्टेड। सो बेसिकली व्हाट आई डू इज आई ऑल्सो टीच लाइफ लेसन्स थ्रू पेंटिंग। Wow. So it's a very therapeutic thing which comes to my other next venture. I'm starting Wow. something for kids in partnership with somebody, which is activating the right brain center. So it's again to do with art. Wow. So वो एक काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है। yes, so that is another venture that I'm starting soon because we are educationists ना, Afeen and me. तो ये हम children को encourage कर रहे हैं, parents को encourage कर रहे हैं to do something like that, to activate the right brain and to encourage art into their lifestyle. पता नहीं अगर आपने मेरा एक रील देखा होगा जहाँ पे मैं बैंड्रा रेक्लेमेशन में गई थी, me, my mother, Aiza, Zidane, बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज किड्स हैं उन सबको हमने कैनवसेस दिया, उन सबको हमने पेंट्स दिया। I want this as a mission because it's not only art. ये आर्ट जो है, it should be reachable to everybody. It should not be a luxury. It should be a need. It should be a want. It should be a lifestyle. तो आप सोच भी नहीं सकते कि through art आपको कितना mind में peace मिलता है. It's your expression and emotion coming out. Same with women. Some or the other form of art is very, very important. I'm not saying just painting. I'm saying whatever you like. Yeah. Coloring, photography, Dance or something. dance, anything. हम अगर आप देखें तो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ आर्ट है. Yes. You know, there is creativity in everyone, and the minute you put that creativity out, that should be your ikigai. That should be your motive to live. It pushes you forward. It's your stress buster as well. Yes, I mean, like when you work out or you dance, you don't think of anything stressful. Yeah. Exactly the same thing when you're painting. The colors make you happy. You're creating something. You know, so you're always creating something. My gardener friend also. Okay. So she creates. So you'll see all these plants that she's put in my house. They create this. She's also an artist. How she handles it. So we're always creating something new without even realizing we're doing this. Yeah. So when you give the world, the community something, वो आप मैजिकली कैसे आपको उसका फल मिलता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मतलब अब आपका ये नया एक वेंचर होगा Yes. जो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा, Yes. राइट? और इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट जो हम आपको टीवी पे देख पाएंगे? इंशाल्लाह सून। Okay.
Thank you, Sara. Thank you, Neha. Thank you very Thanks a much. lot.